زریں گل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کچھ یہی کیفیت نجو اور نبیلہ کی بھی تھی۔ عنایت محمد بڑی جرت سے اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر بات ہاتھا پائی تک پہنچنے لگی تو اس نے پسپائی اختیار کی اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ آثار سے ظاہر تھا کہ وہ روکنے والوں کی ہدایت پر گاڑی کو ایک سائیڈ پر لگانے لگا ہے۔ یہ روکنے والے لیوی کے جوان تو ہرگز نہیں تھے۔ یقیناً ہماری بدقسمتی آڑے آئی تھی اور انہی لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑ گیا تھا جن سے بچ کر ہم نکل رہے تھے۔ میری جیکٹ میں 38 بور کا ریوالور اور قمیض کے نیچے گولیوں والا ایک بیلٹ تھا۔ اس بیلٹ میں 40 گولیاں لگی ہوئی تھیں، 6 گولیاں ریوالور میں تھیں۔ زریں گل کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی جسے اس نے جھالروں اور نقش و نگار سے سجا رکھا تھا۔ اس رائفل کے قریباً 40 راؤنڈ اس کے پاس موجود تھے۔ ہم دونوں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ پک اپ حرکت میں آ کر رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ایک زبردست جھٹکے سے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عنایت محمد صورتحال کو بھانپ کر نکل بھاگا تھا۔ نبیلہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نجو کی متورم آنکھوں میں بھی اندیشوں کے سائے لہرا کے۔ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ عنایت کے نکل بھاگنے کا فیصلہ غلط ہے یا درست ہے، تاہم یہ حقیقت تھی کہ وہ پیٹرول ٹلوائے بغیر نکل بھاگا تھا، اور اگر روکنے والوں کے پاس بھی گاڑی موجود تھی تو ہم دیر تک ان سے نہیں بچ سکتے تھے۔ ہمارے پیچھے کریٹس کی دیوار تھی اور ہم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ تعاقب ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے چلا کر عنایت محمد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ہیجانی آواز میں کہا، یہ الف خان کے بندے ہیں صاحب، 2 گاڑیاں ہیں، ایک ڈانسن پک اپ ہے، دوسری ٹویوٹا مارک 2۔ تو اب کیا کرو گے یہ آپ بتائیں جی؟ میری سمجھ میں تو بس یہی گل آئی تھی کہ بھاگ نکلوں۔ اسلحہ بھی ہوگا ان کے پاس؟ ہاں جی اسلحہ بھی ہے، ٹویوٹا کی کھڑکی سے رائفل کی نال نکلی ہوئی ہے، میں یہاں سے بھی صاف دیکھ سکتا ہوں۔ ڈرائیونگ کیبن سے عنایت کی آواز بمشکل ہم تک پہنچ پا رہی تھی۔ پک اپ بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی، اس کی رفتار اڑنے کی حد تک تیز تھی۔ ادھر نزدیک کہیں لیوی کی چوکی ہے؟ میں نے چلا کر کہا، ہاں جی ہے چوکی، 1.5 میل کا فاصلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی طرح چوکی پہنچنے کی کوشش کرو۔ یکایک اکمیک فائر ہوا اور ہمارے بدترین خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ یہ MG کا فائر تھا۔ گولی قریباً 50 گز کی دوری سے چلائی گئی تھی۔ عنایت محمد کے ہاتھوں میں پک اپ لہرا گئی، پھر یکے بعد دیگر 3 گولیاں اور چلیں۔ ان میں سے ایک گولی سیب کے کریٹوں میں لگی اور 2 کریٹ لڑک کر زریں گل پر آ گرے۔ زخمی شانے کی وجہ سے اس کی کراہ نکل گئی۔ میں نے سہارا دے کر مزید کریٹوں کو گرنے سے روکا۔ منا اب جاگ رہا تھا اور دھماکے سن کر سہمے بلونگڑے کی طرح نبیلہ کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ عجیب لڑکا تھا، اس کے ہونٹوں پر جیسے خوف کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتا تھا تو بند کرنا بھول جاتا تھا اور بند کرتا تھا تو کھولنا ہی بھول جاتا تھا۔ عقب میں آنے والے یقیناً پک اپ کے ٹائروں کو نشانہ بنا رہے تھے اور اپنی اس کوشش میں وہ کسی بھی وقت کامیاب ہو سکتے تھے۔ یکایک پک اپ لہرائی اور قریباً 60 میل کی رفتار سے بھاگتی ہوئی کچے میں اتر گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ گاڑی نے 10-20 کلابازیاں نہیں کھائی۔ ہمارے سر اچھل کر چھت سے ٹکرائے اور مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق 2 اور کریٹ زریں گل کے سر پر آن گرے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے چلا کر عنایت محمد سے پوچھا۔ وہ بولا، بادشاہو کام خراب ہو گیا ہے، آگے پل پر 2 ٹریکٹر ٹرالیاں پھنسی ہوئی ہیں، اب کدھر جا رہے ہو؟ جدھر کو منہ ہے، اس نے ترت جواب دیا۔ انتہائی سنگین صورتحال میں بھی وہ اعصاب پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ کافی جیدار ساتھی ثابت ہو رہا تھا وہ۔ کریٹوں کے لڑک جانے سے اب اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں پک اپ کے فرش سے 4-5 فٹ بلند ہو کر عقب میں جھانک سکتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے پک اپ کے عقبی پردے کی ڈوری کھولی۔ ترپال کا پردہ ہوا میں پڑپڑایا اور باہر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اب دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پر ایک مارک 2 اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک نیلی پک اپ تھی۔ پک اپ کے عقبی حصے میں 2-3 افراد اس انداز میں کھڑے تھے جیسے وہ رائفلیں سونتے وہاں سے جنگ کی طرف جا رہے ہوں۔ میں نے جیکٹ سے ریوالور برآمد کیا اور زریں گل کو تھما کر اس سے رائفل لے لی۔ رائفل کاک تھی اور سیفٹی کیج ہٹا ہوا تھا۔ کریٹوں کے اوپر سے میں مارک 2 کا نشانہ لینے لگا۔ ان اندھا دھند ہچکوں میں ٹائر کا نشانہ لینا تو درکنار، پوری گاڑی کا نشانہ لینا بھی مشکل تھا۔ میں نے اوپر تلے 4 فائر کی اور مارک 2 جو درمیانی فاصلہ تیزی سے کم کر رہی تھی پھر دور چلی گئی۔ فائرنگ سے میرا مقصد بھی یہی تھا۔ عنایت محمد ایک مشاق ڈرائیور تھا۔ انتہائی دشوار راستے پر وہ پک اپ کو حتی الامکان رفتار سے بکائے چلا جا رہا تھا۔ 4-5 منٹ کے اندر فروٹ کے نصف کریٹ جھٹکے کھا کھا کر باہر گر گئے۔ اب ہم 5 افراد گولیوں کے لیے مشکل نشانہ نہیں رہے تھے۔ خاص طور پر مارک 2 سے جھانکنے والی MG کسی بھی وقت ہمارے مزاج پوچھ سکتی تھی۔ حوصلہ افزا بات صرف ایک ہی تھی اور وہ یہ کہ عنایت محمد مارک 2 سے درمیانی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا، بلکہ اب اس فاصلے میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔
हमारे चारों तरफ कटी फटी जमीन थी, घाटियां थीं, झाड़ियां थीं और कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। यूं ही अनायत मोहम्मद ने एक टीले का चक्कर काटा, मुझे अपनी बाईं जानिब नशेब में दरख्तों से लदा फदा एक वसी मैदान नजर आया। छुपने के लिए जगह बहुत मुनासिब थी। मैं अनायत मोहम्मद को इस तरफ मुतवज्जा करने का इरादा कर ही रहा था कि गाड़ी खुद ब खुद उस तरफ को मुड़ गई। अनायत मोहम्मद के जहन में भी ये बात आ गई थी। हम इस वक्त टीले की ओट में थे जब तक मार्क II दंदनाती हुई यहाँ तक पहुंचती। घने दरख्त हमें पनाह फराम कर चुके थे और अगर हमारी किस्मत साथ देती और नीम पथरीली जमीन पर टायरों वगैरह के निशानात न मिलते तो हमारी मुताकिब गाड़ियां धोखा खा सकती थीं। नशीबी मैदान में उतर कर पिकअप मजीद शिद्दत से उछलने लगी और एक मौका पर तो गोल मटोल सरीगुल नज्जो की गोद में जा बैठा। अनायत मोहम्मद ने चंद सख्त मोड़ काटे और फिर इंजन बंद करके पिकअप फुलाही और तूत के एक घने झुंड में घुसा दी। अब बात वही थी, यानी तख्त या तख्ता। अगर ये चाल कामयाब हो जाती तो वाकई शानदार चाल थी। दूसरी सूरत में हमारा हाल इस बारहसिंगे जैसा होता जो चीते से बचते बचते अपने सींग घनी शाखों में उलझा बैठा था। बहरहाल इस लिहाज से अनायत मोहम्मद का यह फैसला मुनासिब था कि पिकअप में थोड़ा बहुत ईंधन बाकी था और अब वो किसी भी जगह गड़गड़ा कर मराकबे में जा सकती थी। इंजन का शोर बंद होती जैसे कायनात में हर तरफ सकूत छा गया। इस सकूत में हमारी धड़कनों की आवाजें उभर रही थीं या मुताकिब गाड़ियों की करीब आती हुई घूं घूं थी। मैं सोचने लगा कि मेरे जहन में कई रोज खतरे की जो घंटी बज रही है, क्या इसका ताल्लुक इन्हीं वाकयात से है? इस सवाल का जवाब वजाहत से नहीं आया। दिल कह रहा था नहीं, वो कोई और वाकया है, कोई नहायत खूनी मंजर जो मेरे जहन पर मुद्दतों नक्श रहेगा। जरीगुल राइफल सौंध कर मेरे पहलू में आ बैठा था। इसे मुतलिक फिक्र नहीं थी कि इसका जख्मी कंधा भी खून उकर रहा है। निचला होंठ दांतों में दबाए अपनी छोटी छोटी आंखें सुकोड़े दूर दुश्मन को घूरता हुआ वो एक कोहना मश्क लश्करी दिखाई देता था। हमें साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजों से सिचुएशन का अंदाजा हो रहा था। दोनों गाड़ियां करीबन 100 गज की दूरी से सीधी निकलती चली गईं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं की। पिछली गाड़ी आहिस्ता हुई और फिर रुक गई। उसने कई बार हार्न दिया, जिसके बाद अगली गाड़ी भी सुस्त हुई और नीम दायरे की सूरत में घूमकर हमारी शुमाल की तरफ आ गई। मुझे अपनी बाईं जानिब 100-150 गज की दूरी पर उसकी झलक नजर आई। वह अनहोनी नहीं हो सकती थी जिसकी हम तवक्का लगा बैठे थे। ताकुब करने वालों को शक हो गया था कि हम नाक की सीध में नहीं गए बल्कि दाएं बाएं हुए हैं। दाएं बाएं भी मैंने मुहावरतन कह दिया है। दाएं तरफ छुपने की कोई जगह नहीं थी। छुपने की जगह यही घने दरख्त थे जो सड़क की बाएं तरफ दूर तक फैले हुए थे। छत और करेटों के दरमियानी खला से गुजरकर मैं पिकअप से बाहर आ गया। जरीगुल ने मेरी तकलीद की। ड्राइवर अनायत पहले ही बाहर खड़ा था। ड्राइवर अनायत नहत्ता था, यानी लड़ाई की नौबत आती तो वो सिर्फ दस्त बदस्त लड़ाई में काम आ सकता था। मैंने जरीगुल को हदायत की कि वो पोजीशन लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा रहे। मैं खुद झुककर चलता हुआ 15-20 कदम आगे गया। आखिर मुझे शाखों के दरमियान से दोनों गाड़ियां दिखाई देने लगी। वो एक छोटे से टीले के दामन में मुंह जोड़े खड़ी थीं और इनके गिर्द शलवारों कमीजों वाले कम अज कम 5 मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। यकीनन कुछ अफराद अभी गाड़ियों में भी होंगे। और फिर मेरी यह गलत फहमी भी दूर हो गई कि वो सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। मेरे देखते ही देखते बड़े टीले के अकब से एक और गाड़ी बरामद हुई। ये जीप थी और तेजी से उछलती कूदती मौका की तरफ बढ़ रही थी। जीप को अपनी तरफ आता देखकर गाड़ियों से बाहर खड़े अफराद फिर गाड़ियों में सवार हुए। तीनों गाड़ियों के सवारों में 2-3 मिनट तबादला ख्याल हुआ। फिर जैसे वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि इनका शिकार बाएं किनारे के घने दरख्तों में है। इन्होंने गाड़ियों में करीबन 50-50 गज का फासला रखा और सुस्त रवि से दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे। वो वाज़े तौर पर हिचकिचा रहे थे। ये तो वो जान ही चुके थे कि हम गैर मुसल्ला नहीं हैं। हमारी ठीक तादाद का भी इन्हें इल्म नहीं था। इसके अलावा वो ये भी नहीं जानते थे कि खुद को घेरे में पाकर हम इन पर क्या दे मारेंगे। ये इलाका गैर था। यहाँ खुदकार राइफल तो बच्चा बच्चा लटकाए फिरता था। लड़ाइयों में दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, जबूक और मार्टर तक इस्तेमाल होती थी। अगर हम पिकअप में से मार्टर तोप निकालकर इन पर धाएं धाएं शुरू कर देते तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। यही बेमानी खदशात थे जो अलिफ खान और उसके साथियों को हद दर्जा मोहतात किए हुए थे। बहरसूरत हमारे दुश्मनों की गलतफहमी हमें ज्यादा देर बचा नहीं सकती थी। अगर हमें बचना था तो खुदा की मदद और अपनी हिम्मत और कोशिश से। मैंने सवालिया नजरों से जरीगुल की तरफ देखा। वो परेशान था। मुझे उसका कद कुछ और भी सुकड़ा हुआ नजर आया। अनायत मोहम्मद भी धुआंधार ड्राइविंग के बाद अब खुश्क लबों पर जुबान फिर रहा था। अचानक मेरे जहन में एक बात आई। अगर हमारी पिकअप अब इन दरख्तों से निकलकर रवाना हो जाती तो चूहे बिल्ली की अंधाधुंध दौड़ एक बार फिर शुरू हो जाना थी। ऐसे में जो भी इन घने दरख्तों के अंदर छुपा रहता वो बच जाता। 100% यकीनी बात तो नहीं थी, लेकिन इसमें रोशन इम्कानात की झलक थी।
मैंने तेजी से सोचा और एक नतीजे पर पहुंच गया। इधर आओ जरी गुल। मैंने जरी गुल को बाजू से खींचा, वो फौरन मेरे साथ चल दिया। अनायत मोहम्मद भी पीछे आया। पिकअप एक छोटे से दरख्त के साथ टकरा कर रुकी थी। नाजुक दरख्त जड़ से तकरीबन उखड़ चुका था। हम तीनों ने जवाना मर्ग दरख्त की लाश खींचकर एक तरफ डाली और पिकअप के सामने से रास्ता साफ कर दिया। ये क्या करता है उस्ताद जानी साहब? जरी गुल ने पूछा। उस्ताद उस्तादी ही किया करते हैं प्यारे, मैंने कहा। तुम्हें भी बड़ा चाव था ना जहानी उस्ताद से मिलने का, अब थोड़ा सा भुगतो भी। भुगतो भी क्या मतलब? तुम्हारा कहा हमारे सर आंखों पर, तो मुंह कम करो। हम अभी इन आरामजादों के सीना चल नहीं करता है। सीने चलनी करने से बात नहीं बनेगी जरी गुल, हमें इनकी तवज्जो अपनी तरफ से हटानी होगी। वो कैसे? अनायत मोहम्मद ने पूछा। मैंने जरी गुल के शाने पर हाथ रखा। ब्रादर, टाइम बहुत कम है, जो मैं कह रहा हूं गौर से सुन लो। मैं पिकअप यहां से निकाल रहा हूं। तुम औरतों और बच्चे के साथ यहां किसी महफूज जगह छुप जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मेरे पीछे आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाऊं और अपने में उलझाए रखूं। अगर तुम देखो कि तीनों गाड़ियां मेरे पीछे रवाना हो गई हैं और यहां कोई नहीं, तो सड़क पार करो और पीछे की तरफ चल दो। तुमने देखा होगा थोड़ा पीछे एक बस को ठीक किया जा रहा था। सफेद बस थी, बहुत से बिस्तर लदे हुए थे उस पर। वो तबलीगी जमात वालों की बस है, शायद किसी इज्तिमा पर जा रहे हैं। बड़े अच्छे और मददगार लोग होते हैं ये। मुझे यकीन है वो तुम्हें अपने साथ सवार कर लेंगे। यकयक फायरिंग होने लगी। गालबन ये हवाई फायरिंग थी। गाड़ियों की गड़गड़ाहट अब काफी नजदीक आ गई थी। मैंने जेब से एक कागज निकाला। इस पर सूबेदार मरजान का मुकम्मल एड्रेस मौजूद था। मैंने एड्रेस जरी गुल को थमाते हुए कहा, यह सदा का एड्रेस है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल तक यहीं मुलाकात होगी। लेकिन कुछ नहीं जरी गुल, मैंने उसकी बात काटी। सद्दा या फिर टल, तुम इन दोनों कस्बों में से किसी में चले जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर मैंने नबीला और नज्जो को बाहर आने का इशारा किया। वो बच्चे को लेकर बाहर आ गईं। वाटर कूलर उलटकर खाली हो चुका था। एक टिफिन कैरियर का खाना भी खुलकर जाया हो चुका था। सिर्फ एक कैरियर सलामत था। वो मैंने जरी गुल को थमाया। पिकअप का अकबी पर्दा डोरी से अच्छी तरह कसकर बांध दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कहाँ जा रहे हैं? नबीला ने मुस्तरिब होकर पूछा। मैंने कहा, नबीला तुम दोनों जरी गुल के साथ रहो, ये पूरे भरोसे का आदमी है। जहां ले जाए चली जाना। मैं आज या कल किसी वक्त तुमसे आन मिलूंगा। मैंने ये बात अंग्रेजी में कही थी। नबीला के अलावा किसी की समझ में नहीं आई। नबीला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन इससे पहले मैं इंजन स्टार्ट कर चुका था। पहला गियर लगाकर मैंने क्लच को पांव के दबाव से आजाद किया। पिकअप ने झुरझुरी दी और उछलती कूदती आगे बढ़ी। मैंने यूटर्न लेकर इसे घने दरख्तों से बाहर निकाला। खुली जगह पहुंचते ही मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। पिकअप कमान से निकले तीर की तरह सड़क के मुतवाजी आगे बढ़ने लगी। अकबनुमा आईने पर निगाह डाली तो सीने से इत्मीनान की सांस निकली। अलिफ खान की तीनों गाड़ियां हरकत में थी। बिल्कुल शिकार की सी भाग दौड़ थी। जैसे जंगली खरगोश कुछ देर दम लेने को झाड़ियों में दुबक जाता है और शिकारी कुत्ते पागलों की तरह उसे खोजते फिरते हैं। फिर वो एक जगह खड़े होकर अपनी दुम्बे हिलाने लगते हैं और कान गैर मरई आवाजों पर लगा देते हैं। जैसे ही किस्मत का मारा जानवर इनकी गुर्बत से घबरा कर फिर भागता है, वो दीवाना बाहर उसकी तरफ लपक पड़ते हैं। मैं किसी सड़क की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जानिब का रास्ता मसदूद था। मजबूरन मुझे कच्चे में ही भागना पड़ रहा था। मैं मुताक़िब गाड़ियों को अपने पीछे लगाकर करीबन 2 मील की दूरी तक ले आया। ये वो ज्यादा से ज्यादा कामयाबी थी जिसकी मैंने तवक्का की थी। इस 2 मील की दौड़ में न सिर्फ मैं खुद महफूज रहा था, बल्कि गाड़ी के टायर भी ब्रस्ट होने से बच रहे थे। अब मुताक़िब गाड़ियों से मेरा दरमियानी फासला बहुत थोड़ा रह गया था। फासले के साथ साथ बच निकलने का चांस भी कम होता जा रहा था। वो लोग फायरिंग भी कर रहे थे। चूंकि अब फायरिंग बहुत नजदीक से हो रही थी, लिहाजा किसी भी लम्हे कोई गोली टायर में लग सकती थी। गोली ना भी लगती तो अब पेट्रोल अपने आखिरी कतरों पर था, या मुमकिन है खत्म ही हो चुका हो और पिकअप सिर्फ मुताक़िब गाड़ियों की दहशत से भागी जा रही हो। जंगली खरगोश के साथ भी तो ऐसा ही होता है। इसका जिस्म बेजान हो चुका होता है, लेकिन वो कुत्तों के आगे भागता चला जाता है और फिर पट से गिरकर मर जाता है। इन आखिरी लम्हात में भी मेरी निगाहें सड़क का खोज लगा रही थीं, लेकिन सड़क कहीं नजर नहीं आ रही थी। लगता था वो इस खूनी भागदौड़ से दामन बचाने के लिए किसी कछुए की तरह रेंग कर झाड़ियों में गुम हो गई है। मैंने डायल पर निगाह डाली। स्पीडोमीटर की सुई 40 पर लर्ज रही थी। इस रास्ते पर 40 मील की रफ्तार हमवार सड़क पर 160 मील की रफ्तार से ज्यादा खतरनाक थी। पिकअप 2 फुट उछल रही थी। कभी सरबत सजूद नजर आती थी और कभी घोड़े की तरह अलिफ हो जाती थी। अचानक मुझे बाईं तरफ से एक नामानूस गुर्राहट सुनाई दी। इससे पहले कि मैं घूम कर देखता, एक परछाई सी झाड़ियों से नमदार हुई और लपक कर मेरी तरफ आई।
यूं लगा जैसे किसी ने गंदम से भरी हुई 2.5 मन की बोरी खींच कर मुझ पर दे मारी है। एक नाकाबिले बर्दाश्त धचका था। पिकअप तो पहले ही इशारे के मुंतजिर थी। स्टीयरिंग का मेरे हाथों से फिसलना था कि सब कुछ काबू से बाहर हो गया। मुझे लगा जैसे गाड़ी का फर्श मेरे पांव तले से निकल गया है। मशरिक से उभरता हुआ सूरज एकदम मेरे सर पर से गुजर गया और झाड़ियां, टीले, दरख्त सब निगाहों में गडमड होते चले गए। मुझे एहसास हुआ कि कोई दरिंदा मेरे बिल्कुल नजदीक गुर्रा रहा है और पिकअप कलाबाजियां खाकर नशीब में लुढ़क रही है। थोड़ी देर के लिए मेरे हवास मुअत्तल हो गए। यह गालबन 4-5 मिनट का वक्फा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस दौरान मुझे इर्द गिर्द की खबर नहीं रही थी। मैं धुंधले मंजर देख रहा था और करीब की आवाजों को सुन रहा था। हाँ, इतनी सकत मुझ में नहीं थी कि कोई रद्द अमल जाहिर कर सकूं। इन 5 मिनटों के दौरान मुझे बुरी तरह मारा पीटा भी गया था। फिर मैंने एक शख्स को, जो यकीनन रहमान जई था, खुद पर झपटते देखा था। वो गलीज गालियां बक रहा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इसके हाथ में एक उस्तरा था और वो चीख चीख कर कह रहा था, हम इसी उस्तरे से तेरा गला काटेगा। फिर एक लंबे तिरंगी शख्स ने इसे संभाल लिया था। वो इसे पश्तो में समझा रहा था, जैसे कह रहा हो, नहीं अभी नहीं, अभी जरा ठहर जाओ। धीरे धीरे मेरे जहन पर छाया हुआ गुबार छटने लगा। आंखों में रोशनी और कानों में समात अपनी असल सूरत में लौटने लगी। मैंने पलकों को पूरी तरह उठाकर अपने सामने का मंजर देखा। मैं करीबन 8 अफराद के नरगे में था। वो सब के सब मुसल्ला थे और इनमें अलिफ खान सबसे नुमाया नजर आ रहा था। मैंने अपनी पेशानी को छुआ, उंगलियां खून से तरबतर हो गईं। सर पर चोट आई थी और इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जमीन पर पड़ा हूं। मैंने कोहनियों पर जोर दिया और उठकर बैठ गया। पिकअप मुझसे कोई 30 गज के फासले पर उल्टी पड़ी थी। टायर आसमान की तरफ थे। इसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई काकरोच उलट गया हो और सीधा होने की कोशिश करते करते राहे अदम हो गया हो। पिकअप के नीचे एक जानवर की लाश दबी हुई थी। यह जानवर पहली निगाह में मुझे अजीबुल खलकत लगा, लेकिन गौर करने पर अंदाजा हुआ कि वो एक बड़े साइज का कुत्ता है। चेहरा देखकर उसे कुत्ता तस्लीम करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन चेहरे के अलावा उसका जितना भी जिस्म पिकअप से बाहर नजर आ रहा था वो कुत्ते से मुशाबा था। उसके चेहरे के साथ मालूम नहीं क्या हुआ था कि वो अजीब भयानक सी शक्ल इख्तियार कर चुका था। यकीनी बात थी कि इस जानवर के दखल दर माकुलात के सबब मैं पिकअप पर काबू नहीं रख सका था और नतीजे में टूट फूट कर मिस्मार शुदा हालत में मुसल्ला अफराद के कदमों में पड़ा था। यह जानवर पिकअप की खुली हुई खिड़की के रास्ते मुझ पर झपटा था और सब कुछ तहो बाला कर गया था। अलीफ खान ने नीचे झुककर मेरे गाल अपने एक हाथ में दबाए और बड़ी बेरहम आवाज में बोला, मैं पूछता हूं कहां है बाकी का लोग है। मेरे जवाब देने से पहले ही उसने एक जोरदार ठोकर मेरी पसलियों में रसीद की और अपने एक पोटवारी साथी से गरज कर कहने लगा, लाले, मुझे लगता है ये कुत्ता अपने बहनों और इनके यारों को दरख्तों में ही छोड़ाया है। चलो गाड़ियां वापस मुड़ो वरना निकल जाएंगे वो। अलीफ खान के अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह लगे। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बाईं आंख सूज चुकी है और निचला होंठ भी फटा हुआ है। रिवाल्वर कहाँ है? मैंने जैसे अपने आप से सवाल किया। मेरा हाथ खुद बखुद जैकेट की जेब पर आया। जेब हल्की हो चुकी थी। मालूम नहीं रिवाल्वर मारपीट के दौरान गिर गया था या निकाल लिया गया था। मैंने उठने की कोशिश की तो अलीफ खान ने कनपट्टी पर जोरदार ठोकर मारी। मैं फिर ऊंधे मुंह गिरा। ज़हन के धुंधले आसमान पर एक बार फिर तारे से नाचने लगे। डालो इसको भी गाड़ी में। अलीफ खान ने मुझे पश्तो में कोई सख्त किस्म की गाली देते हुए कहा। वो उर्दू रवानी से बोलता था, लेकिन कहीं कहीं पश्तो के अल्फाज इस्तेमाल कर जाता था। दो हट्टे कट्टे अफराद ने मुझे डंडा डोली करके उठाया। नीली पिकअप के पास पहुंचकर इन्होंने मुझे 1-2 बार झल्लाया, फिर बड़ी बेदर्दी से गाड़ी में पटक दिया। इसी वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाड़ी में पटका जाने वाला मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ खुदा की एक और कटी फुटी मखलूक भी गाड़ी के फर्श पर पड़ी थी। ये वही कुत्ता था जिसे चंद मिनट पहले मैंने पिकअप तले दबा देखा था। यूं लगता था इस कुत्ते को थूथने के नजदीक किसी जहरीली चीज ने काटा है, जिसकी वजह से इसका मुंह जो पहले ही बहुत बड़ा था सूजकर कुप्पा बन चुका था। लुआबे दहन, खून और मिट्टी में लथड़े हुए इस दहशतनाक चेहरे को देखकर किसी इफरीत का ख्याल आता था। मैं इस इफरीत के पहलू में पड़ा था। हम दोनों के जख्मों से रिश्ता हुआ खून एक दूसरे में मिक्स हो रहा था। मैंने अपने रग पट्टों को हिला जुला कर देखा। शदीद चोटों के बावजूद मैं अब खुद को मुजाहमत के काबिल महसूस कर रहा था। बगैर छुए मैं अंदाजा लगा सकता था कि पिंडली से बंधा हुआ खंजर अपनी जगह मौजूद है। अब सोचने की बात यह थी कि मैं इस खंजर से क्या काम ले सकता हूं। फौरी जवाब यह था कि कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त 8 मुसल्ला अफराद के नरके में था और वो एक से बढ़कर एक खरांट नजर आते थे। मुझे अटक जेल का कालूम मकरानी याद आ गया। वो ऐसे अफराद के लिए खोचल का लफ्ज इस्तेमाल किया करता था, यानी खाए पिए और दुनिया का सर्द गर्म देखे हुए लोग। वो कहा करता था, मास्टर
खोचल बंदा मुनाफा में जीता है, बिल्कुल अपुन की तरह। बड़ी लाइफ में इसके लिए कोई बात नया और अनोखा नहीं रहता, और जब लाइफ में कोई नया बात ना होना तो फिर लाइफ से इतना मोहब्बत नहीं होता। बंदा हर टाइम मरने मारने के लिए तैयार रहता है। इस वक्त खराट सूरतों वाले 8 अदद खोचल मेरे गिर्द मौजूद थे और मुझे कोई मौका देने पर तैयार नजर नहीं आते थे। मैंने कहा नखियों से देखा, वो लोग उल्टी हुई पिकअप को सीधा कर चुके थे और अब इसकी तलाशी ले रहे थे। खंजर पिंडली से निकालकर हाथ में लेने का यह बेहतरीन मौका था। मैंने जल्दी से शलवार का पाइचा खींचकर खंजर निकाला और कमीज के नीचे रख लिया, लेकिन यह जगह महफूज नहीं थी। मुमकिन था कि रास्ते में फिर मेरी तलाशी ली जाती। मैंने तेजी से पिकअप का जायजा लिया। इस दौरान कदमों की आवाज उभरी। मजबूरन मैंने खंजर फिर कमीज के नीचे रखा और आंखें बंद करके भी हिस्सो हरकत लेट गया। आने वाले 3 मुसल्ला अफराद थे। इनमें रहमान ज़ई भी था। वो मदकूक सा कबाब फरोश बुड्ढा सबसे ज्यादा बरहमी का इजहार कर रहा था। उसने भारी भरकम पेशावरी चप्पल की मेरे सर पर ठोकर मारी। मैं जब्त करके बेसुध लेटा रहा। पोठोहारी बोला, जुलता नहीं गया सोरीदा, यानी कहीं मर तो नहीं गया। रहमान ज़ई बोला, ऐसा शर्म वाला नहीं है, मकर किए लेटा है। मेरा मकर तोड़ने के लिए उसने एक और ठोकर मेरी पसलियों में दी। मैंने इस ठोकर के जवाब में वही अमल जाहिर किया जो रेत की बोरी करती है। बेहोश है रानी खां का साला, रहमान ज़ई ने नतीजा अखज़ किया। दोनों अफराद राइफलें ताने बिल्कुल चौकस खड़े थे। मेरा दायां रुखसार इंसानी और हैवानी खून से लथड़े हुए फर्श पर था और मुंह रहमान ज़ई के जूते से छू रहा था। अजीब बदबूएं उठ रही थीं इस जूते से। सड़े हुए कीचड़ की बू, गोबर की बू, बसान जोड़े गोश्त की बू और किसी गलाजत मारे बैतुल खला की बू। मेरे बस में होता तो एक सानिये से पहले अपना चेहरा पीछे हटा लेता, लेकिन मैं गहरी बेहोशी में था, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकता था। कभी कभी सोचता हूँ वक्त के साथ कितना बदल जाता है इंसान। जिंदगी की तल्ख हकीकतें कैसे इसके मिजाज पूछती हैं और कैसे इसे अपने मन चाहे सांचे में ढाल देती हैं। मैं अपने स्कूल, कॉलेज और घर में एक नहायत नफासत पसंद लड़का मशहूर था। मैं और मेरी बहन फूलों और तितलियों से प्यार करते थे, पौधों की सरगोशियां सुनते थे और रंगों की जुबान समझते थे। मुझे याद है हमारे कस्बे जलकोट के अक्सर लड़के शिकार खेलते थे, मगर 16-17 बरस की उम्र तक मैंने कभी चिड़िया तक नहीं मारी थी। सड़क पर किसी मुर्दा जानवर को देख लेता तो हफ्तों गोश्त को हाथ नहीं लगाता। जनाजे की सूरत देख लेता तो पहरों गुमसुम बैठा रहता। आज मैं 1 सेकंड के अंदर जान लेने और जान देने पर तैयार हो जाता था। कटे हुए आज़ा, भयानक जख्म, लटकती हुई अंतड़ियां, मसख लाशें, कुछ भी मुझ पर देर पा असर नहीं करता था। शायद ये लचक कुदरत ने ही इंसान की फितरत में रखी है। कैसे कैसे इंसान अजनबी सांचों में ढल जाते हैं और इस तब्दीली के लिए किसी उम्र की कैद भी नहीं होती। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत और मर्द सब वक्त आने पर इस इनकलाब से गुजर जाते हैं। पिकअप के खून आलूद फर्श पर लेटे लेटे मुझे गजाला याद आ गई। ये वही लड़की थी जिसने शबाब की पहली सीढ़ी पर मुझे नफरत से धुतकार दिया था। खानदानी फजीलत के घमंड में मुझे अछूत समझा था और अपनी फटी हुई कमीज का रोना यूं रोया था कि जलकोट में तहलका मच गया था। आज वो लड़की मेरी खातिर सब कुछ लुटाने पर तैयार थी। मेरी एक नजर करम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। मेरे साय से बिदकने वाली मेरा साया बन गई थी। मेरे साथ साथ चलती थी। मैं उस पर पांव धरता गुजर जाता था। वो शिकवा करती थी, न आह भरती थी। ये सब गुजरते हुए वक्त की तिलस्म कारियां हैं। बाकी दोनों गाड़ियां स्टार्ट हो चुकी थीं, लेकिन पिकअप के ड्राइवर ने अभी इग्निशन में चाबी नहीं घुमाई थी। अचानक आंखों की बारीक झुर्री से मैंने रहमान ज़ई को नीचे झुकते देखा। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, एक हाथ ने कमीज के ऊपर से मेरे खंजर को छुआ और फिर फौरन दूसरा हाथ उसे निकाल ले गया। मुझे खंजर से महरूम करने वाले ये दोनों हाथ यकीनन रहमान ज़ई के थे। 2 सेकंड से भी कम वक्त में यह वाकया रुनमा हुआ और मैं जैसे अचानक मायूसी के अंधेरों में दब कर रह गया। रहमान ज़ई ने या किसी दूसरे ने मेरे जख्मी सर पर राइफल की वजनी नाल से अमूदी जरब लगाई और मेरे कानों में पश्तू के गाली नुमा अल्फाज गूंजने लगे। बहुत तकलीफ दे जरब थी ये। मेरे हाथ पांव ईंट कर रह गए। ताम मैंने बेहोशी का भरम कायम रखा। कहते हैं हर इंतहा के बाद एक इब्तिदा होती है। मायूसी और तकलीफ की इंतहा का यह लम्हा भी एक मुख्तलिफ कैफियत की इब्तिदा बन गया। अचानक मेरे कानों में कुत्तों की गुराहटें उभरी। ये गुराहटें दाएं जानिब झाड़ियों से बुलंद हुई थीं और बड़ी तेजी से करीब आ रही थीं। जो पहला एहसास मुझे हुआ वो यही था कि कुत्तों का एक गौल अलिफ खान और उसके साथियों पर हमला आवर हो रहा है। फिर मुझे 7mm का धमाका सुनाई दिया। यह इत्तिफाक था कि मेरी नजर रहमान ज़ई की तरफ उठी हुई थी। मैंने उसकी पेशानी पर नाक के ऐन ऊपर एक स्याह निशान नमूदार होते देखा। यह गोली का निशान था। रहमान ज़ई पट से ऊंधे मुंह कुत्ते की लाश पर गिरा
दूसरी गोली एक हट्टे कट्टे शख्स के हाथ पर लगी और माउजर जो उसके हाथ में था निकल कर दूर जा गिरा।